میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, 2 دن سے اللہ گواہ میں سویا نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایک بچہ فرشتہ بن کے مجھے آ گیا جس نے مجھے دماغ میں یہ بات ڈال دی. 2 دن پہلے کی بات ہے, میں گھر آیا, شام کو میرا بچہ بیٹھتا ہے, 8 سال کا ہے, الحمدللہ حفظ کر رہا ہے, اسکول بھی جاتا ہے, کرکٹ بھی کھیلتا ہے, لیکن شام کو میرے ساتھ بیٹھتا ہے. سیاست اس کے خون میں ہے, سیاسی چیزیں ڈسکس کرتا رہتا ہے, سب سے زیادہ دینی چیزیں ڈسکس کرتا رہتا ہے. میرے ساتھ بیٹھا, میں یہ بیان دیکھ رہا ہوں جہاں پہ یہ شراب کی چیزیں چل رہی ہے. مجھے میرا بیٹا سوال پوچھتا ہے, کہ بابا مجھے ایک بات کا جواب آپ دیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ بولتے رہتے ہو کہ شرابی کی مغفرت شب قدر کو بھی نہیں ہوتی, یہ بات سچ ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں بیٹا یہ بات سچ ہے. کہتا ہے جو بیچتا ہے اس کا کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. مجھے بیٹا کہتا ہے اچھا بابا مجھے بتاؤ جو ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے, آپ مجھے بتاؤ اس کا کیا حال ہے, اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بیٹا اس کی بھی مغفرت نہیں. خدا کی قسم ایسا ایک سوال پوچھا, صائم مصطفیٰ نے ہمیشہ حاضر جواب رہا ہوں, ہر کسی چیز کا میں نے کاؤنٹر کیا ہے, ہر جگہ میں نے ایک حاضری سے جواب دیا ہے. پہلی بار میری بولتی بند ہو گئی. مجھے بیٹا میرا سوال پوچھتا ہے, بابا آج عمر عبداللہ کہتا ہے نا کہ نہیں میں شراب کی دکانیں بند نہیں کروں گا, آپ بھی تو اس چیز کا ساتھ دے رہے ہو کہ آپ کی مغفرت اللہ تعالیٰ کرے گا. 2 دن جناب, 2 دن میں سویا نہیں ہوں. پہلی بار ایک چھوٹے 8 سال کے بچے نے میری بولتی بند کر دی, اور آج میں اپنے بچے کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں, میں اپنی پوری کشمیر کی عوام کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں, خاص طور پہ جو میرے بچے نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, میرا بچہ یہی کہیں ہوگا, میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج بتاؤں گا, نہیں بیٹا تمہارے بابا نے اس پارٹی کو الوداع کر دیا ہے, اس جماعت کو الوداع کر دیا ہے جو یہاں پہ شراب کو انڈورس کرتی ہے. میں وہاں پہ کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, میں بولوں گا میرے سے اگر کچھ بھی نہیں ہو پایا, کوئی لڑائی نہیں ہو پایا, لیکن جب آپ کے دین پہ یہاں پہ اثر آیا, صائم مصطفیٰ کی ذات اس ٹائم پہ ان لوگوں کے خلاف یہاں پہ کھڑی تھی, چاہے نتیجہ کوئی بھی یہاں پہ ہو. میں اس چیز میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا. ان لوگوں کو اب اتنی شرم بھی نہیں آتی. آپ دیکھیے کس حساب سے کہتے ہیں کہ ہمارا ریونیو آتا ہے شراب سے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے صرف ایک ریونیو؟ پاور پروجیکٹس آپ نے بیچ دیے, بجلیاں آپ نے یہاں کی بیچ دی, یہاں کے ریسورسز آپ نے بیچ دیے. اب آپ پورے ہندوستان کو نہیں پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیری جو کہ خاص طور پہ جموں کشمیر کی یہاں پہ عوام ہے, جس میں ہندو ہے, جس میں مسلم ہے, جس میں سکھ ہے, جس میں عیسائی ہے, وہ یہاں پہ صرف شراب کے پیسے سے ان کا گھر چلتا ہے. کہنے کا آپ کا یہ غرض ہے, آپ نے بدنام کر دیا اس قوم کو جس نے آج آپ کو یہاں پہ ایک تاج پہنایا تھا. مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے, خدا کی قسم جب رات میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا گاندربل میں تم نے ٹوپی کیوں اٹھائی؟ میں اسی ٹائم سٹیج پہ تھا, نیچے اترا, کہیں باہر گیا تھا, جب میں نے دیکھا ٹوپی, میں نے کہا آپ نے ٹوپی کیوں اٹھائی گاندربل میں؟ کہتا ہے مجھے لگا کہ میں الیکشن نہیں جیتوں گا. میں نے کہا عمر صاحب لڑائی الیکشن کی نہیں ہے, آپ الیکشن ہارے یا جیتے کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ جس لڑائی کے ساتھ ہے, کشمیر کی عوام آپ کی اس لڑائی کے ساتھ ہے. مجھے لگا تھا یہ وہ لڑائی لڑے گا, لیکن افسوس کی بات یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں آخر میں آپ لوگوں سے کہ اس ٹائم پہ میں نیشنل کانفرنس کی جماعت سے یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نیشنل کانفرنس کے ووٹر سے کہنا چاہتا ہوں, میں جموں کشمیر کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آج اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاؤں گا کہ نہیں, میں نے اس جماعت کا سپورٹ نہیں کیا, میں نے اس جماعت کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا اور میں چلا گیا اس جماعت سے جو یہاں پہ کشمیریوں کی عزت اتارنے پہ تلی تھی, جو ہمارے دین پہ اٹیک یہاں پہ کر رہی تھی, جو یہاں پہ شراب کو انڈورس یہاں پہ کر رہی تھی. میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج بتاؤں گا. نیشنل کانفرنس کے ان ورکرز کو پوچھنا چاہتا ہوں, میں نیشنل کانفرنس کے ایم ایل ایز کو پوچھنا چاہتا ہوں, میں نیشنل کانفرنس کے ان لوگوں کو جو یہاں پہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, جو سپورٹرز ہیں, ان کو یہاں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہم اس جماعت کے خلاف یہاں پہ کھڑے ہیں جو یہاں پہ آپ لوگوں کے مستقبل کا یہاں پہ آپ جو کھیل رہی ہے اس ٹائم پہ, اور ہم لوگ اس جماعت کو آج الوداع کہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, خدا کی قسم ہم آئے دن کہتے رہتے ہیں, اللہ اس چیز کا گواہ ہے. آپ دیکھیے اس ٹائم پہ حالات جموں کشمیر کے کیسے ہیں, آئے دن جوانوں کی موت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ہمیں کس چیز پتا چلے گا کہ اللہ کی ناراضگی کسی قوم پہ کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جوانوں کی ناحق موت ہونے لگے آپ یہ سمجھ لو اللہ غضبناک آپ پہ, اللہ ناراض ہے. آج ابھی ایسا ماحول ہے, وجہ اس میٹنگ بلوائی, ان کے ساتھ مشورہ کیا, اس میں جو کہ ہمارا میجورٹی طبقہ ہے, ہماری جو اکثریت وہاں پہ ہے, اکثریت نے وہاں پہ اس چیز کا مشورہ دیا کہ نہیں جی آپ اس ٹائم پہ نیشنل کانفرنس کا ہی سپورٹ کریں, کیونکہ سب کو لگا, مجھے بھی انڈیویجولی یہ چیز لگا کہ نہیں اس ٹائم پہ جو کرسی کی ایک لڑائی ہے, یہ وہ لڑائی نہیں ہے کہ مجھے ایم ایل اے بننا ہے یا مجھے کسی پوسٹ پہ بیٹھنا ہے. اس کے بعد مجھے بلایا گیا, کس حساب سے کمٹمنٹس کی گئی, لیکن میں صرف ایک بات پہ اڑا رہا جس چیز کے بہت سارے گواہ بھی ہیں. اس کمرے میں جب ہم نے ملاقات کی تھی میں صرف ایک بات پہ اڑا رہا. مجھے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا بتاؤ کل کو آپ کو کدھر بیٹھنا ہے, میں آپ کو بٹھاؤں گا. مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ میری حالت ایسی ہے کہ میں بارامولہ سے الیکشن لڑ چکا ہوں, میں ہار چکا ہوں, مجھے اب نہیں لگتا میں کہیں سے الیکشن جیتوں گا.
अगर मुझे लगता है कहीं से मैं इलेक्शन जीत पाऊंगा या मुझे अपनी पार्टी कह रही है आप इलेक्शन लड़े, मुझे लगता है गांधरबल से जीत पाऊंगा, लेकिन उसकी एक शर्त यह है कि अगर आप मेरा वहां पे सपोर्ट करते हैं। मैंने वो चीजें मद्देनजर रखते हुए एक ही चीज कही है, मैंने कहा मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे कोई भी कमिटमेंट आपसे नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कोई इख्तियार नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कोई कुर्सी नहीं चाहिए। उस चीज के आप लोग भी यहाँ पे गवाह हैं, ये साथी यहाँ पे गवाह है। इधर स्टेज लगा हुआ था, उस स्टेज पे उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही थी कि मैंने साइम मुस्तफा से अनकंडीशनली पूछा था आप बताओ कि आपको कल को क्या चाहिए, आपको किस कुर्सी पे बैठना है, और ये अल्फाज भी दोहराए थे कि साइम मुस्तफा अगर चाहते मुझे ब्लैकमेल कर सकते थे, क्योंकि तब मैं मजबूर था। आज हमारी पार्टी उस हिसाब से है कि मैं कहीं इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं था, लेकिन साइम मुस्तफा से मैंने ये बात की, मैंने कहा आप बताइए आप कहां बैठेंगे, लेकिन उन्होंने अपने घर के लिए कुछ भी नहीं मांगा। इस चीज के गवाह मुझे लगता है आप सब लोग हैं, ऑन रिकॉर्ड है, किसी को चाहिए तो मैं वो दे सकता हूं कि उन्होंने कहा कि साइम मुस्तफा ने अपने घर के लिए कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने अगर मांगा सिर्फ अपनी आवाम के लिए मांगा, सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए मांगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने स्टेज पे कही कि साइम साहब ने ये कहा कि बीजेपी के मामले में कहीं पे भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और जो 370 और हमारे हकूक की लड़ाई है वहां आप किसी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो ये ऑन रिकॉर्ड है। स्टेज पे उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही थी कि ऐसे मामला है, लेकिन उसके बाद एक वक्त गुजरता है, हम लोग मेहनत करते हैं, आगे जाते हैं। किस हिसाब से, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की भी बात कर रहा हूं जिन्हें अपना खून पसीना एक लगा दिया इस जमात को कामयाब करने में। जबकि ये कहा जाता था 25 सीटों से ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जाएगी, जबकि बीजेपी दावा करती थी कि हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ बनाएंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कुछ गलतफहमियां बहुत सारे लोगों को यहाँ पे है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर शायद अलग मिजाज के हैं, शायद अलग हिसाब के हैं, लेकिन वल्लाह मैंने उनकी डेडिकेशन देखी है, किस हिसाब से वो तहे दिल से अभी भी चाहते थे, किस हिसाब से वो तहे दिल से चाहते थे कि नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जीते, और इतनी मेहनत उन लोगों ने की है, मैंने वो चीज देखी है। गांधरबल की बात करें, मेरे लड़कों ने, मेरे साथियों ने यहाँ पे इतनी मेहनत की, मुझे पता है रात को ये सोते नहीं थे, रात भर घूमते रहते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को वो भरोसा इन लोगों ने दिलाया कि नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जमात है, हमें इस टाइम उमर अब्दुल्ला को गांधरबल से कामयाब करना है ताकि यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बने। मुझे पता है अच्छे से, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को भी यहाँ पे उस चीज का सलाम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार फिर से जो इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर 2024 में थे, बहुत ज्यादा उनका दिल तंग हो चुका था, लेकिन एक बार कश्मीर की आवाम ने फिर से भरोसा किया था। मुझे इन लोगों की असलियत पहले से पता थी, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए, मुझे भी लगा शायद इन लोगों को अकल आ गई होगी। उसमें ये चीज हुआ जब 370 का मामला हुआ, इनको जेलों में बंद कर दिया गया। पहले तो जेल नहीं कहेंगे, ये बहुत ही अच्छे वीआईपीज वहां पे कोठियों में वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन चलो फिर भी हम मान लेते हैं 6-7 महीना 8 महीना ये लोग बंद रहे। मुझे भी शायद लगा नहीं जो पीछे हुआ, शायद उस चीज से इनको अकल आई होगी, शायद इस चीज से इनको पता चला होगा कि कश्मीरियों पे किस हिसाब से यहाँ पे जुल्म और सितम सहा है, कश्मीरी किन हालात से गुजरा है। आज ये चीज अगर हमारे साथ हो सकती है तो इन कश्मीरियों ने कैसे सहा होगा। मुझे लगा शायद इन लोगों को उस चीज का एहसास हुआ होगा, क्योंकि अब ये जेलों में बंद रहे हैं, जिसका भरोसा आप खुद सोचिए। मैं इलेक्शंस की पहले की बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे गरजता हुआ शेर उमर अब्दुल्ला उस टाइम पे लगता था कि नहीं, जिस हिसाब से ये लड़ेगा, जिस हिसाब से स्टेज पे उमर अब्दुल्ला बयानबाजियां करता था बीजेपी के खिलाफ, जिस हिसाब से मीटर पे उसने बोला कि मैं पानी में फेंक दूंगा, 370 पे मैं लड़ूंगा, स्टेट हुड के लिए मैं लड़ूंगा, कश्मीर की आवाम के लिए मैं लड़ूंगा, किसी जगह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। शराब की दुकानों पर उसने बात की कि अगर बीजेपी ने यहां कुछ दिया तो शराब की दुकानों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अफसोस की बात आप देखिए, आज की डेट में मुझे कोई शर्म यहां पे नहीं इस बात में बोलने को आ रही है, जिस चीज को मैं बब्बर शेर समझता था वो आखिरकार एक भीगी हुई बिल्ली के ज्यादा और कुछ भी नहीं निकला। मैं इस चीज का गवाह हूं। मैंने इस पार्टी में जाके, आप देख रहे हैं, मैं पिछले 1 साल से साइलेंट हूं, मैं चुपचाप हूं। मैं मॉनिटर कर रहा था इस पार्टी की पॉलिसीज क्या है, मैं अच्छे से मॉनिटर कर रहा था, मैं देख रहा था कि इस पार्टी की पॉलिसीज क्या है, और मैं लास्ट में एक ही नतीजे पे पहुंचा हूं, इस पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ गजब किया है। ये पार्टी वाले अभी भी नहीं सुधरे हैं, इनको अगर चाहिए सिर्फ इख्तियार की भूख है और कुछ भी नहीं। ये मैं आपको दावे के साथ बताता हूं, मैंने बंद कमरे में इनके साथ बातें की है, मैंने इनको बार बार इस चीज का एहसास दिलाया है कि यहां पे लोग मर रहे हैं, लोगों ने आपको वोट किया, आपको फिर लोगों के लिए अंदर आना है, आपको फिर अवाम में आना है, लोगों ने आपको यहाँ वोट किए हैं। मैंने ये बात भी उमर अब्दुल्ला से कही है कि आपने गांधरबल में अपनी टोपी उतारी थी, लोगों से वहां पे भीख मांगी थी आपको जिताने के लिए। आज वही लोग गांधरबल में मर रहे हैं, आज आपके वर्कर मर रहे हैं, आज आपके वो वर्कर बहुत ज्यादा परेशान है। उस हिसाब से भी मैंने बात की। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को ये बात बताना चाहता हूं, मुझसे जवाब वहां पे ये गया, मैंने ये बात कही, मैंने कहा कल को ये वर्कर आपके लिए खड़े नहीं होंगे,
ये वर्कर वहां पे इस टाइम पे दिल तंग हो चुका है, ये भाग जाएंगे, मुझे जवाब दिया जाता है 10 चले जाएंगे तो 20 और आ जाएंगे। ये मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ। इस चीज का मैं बात आप बोले, मैं उमर अब्दुल्ला के लाल चौक बाजार में, बीच बाजार में उसके साथ इस बात को बात बोलने के लिए तैयार हूँ कि मुझे बोला गया था 10 जाएंगे तो 20 और आ जाएंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन वर्कर्स की हालत है, उनके बारे में उमर अब्दुल्ला बात कर रहा है जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने खून अपना लगा दिया इसको फिर से चीफ मिनिस्टर बनाने में। बात यहीं पे नहीं रुकी, मैंने वक्तन फवक्तन, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, वक्तन फवक्तन इस बात की लड़ाई का एहसास दिलाया, याद दिलाया। मैंने ये बात भी वहां पे की। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बात हद से गुजर गई, मैंने एक मिनिस्टर के साथ बात की है जम्मू में, ऑन कैमरा बता रहा हूं, नाम अभी नहीं बताऊंगा। मैंने एक मिनिस्टर के साथ बात करके ये बोला है, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, क्या आप सीएम साहब को ये चीज नहीं बताते? इस टाइम पे जो कश्मीर के हालात हैं, आप लोग अपनी कुर्सियों पे मजे कर रहे हैं, आप उस लड़ाई को भूल गए हैं। वल्लाह अल्लाह इस चीज का गवाह है। मुझे वो मिनिस्टर उठ के कहता है कि साहिम साहब आप ही सीएम साहब को बताइए ना, आप उठे, मैं अलग 1 लाख बंदा जमा करूंगा, मैं इसको बता रहा हूं। लेकिन ये उस चीज से टस से मस नहीं रहे, बोलता है चलाओ यार, चलाओ गवर्नमेंट चलाओ, चुपचाप बैठ के चलाओ। अब हम भी चुपचाप बैठ के चला रहे हैं। अब नाम चाहते हैं, अगर कोई इस चीज का डिनाई करेगा, मैं इसका हवाला भी आप लोगों को दूंगा। वक्त आने पे बहुत सारी चीजें इधर खुलेंगी, क्योंकि इनसे अंदर जाके मैं वाकिफ हूं। एक बहुत बड़ा शोशा इस टाइम पे चल रहा है सोशल मीडिया में कि नहीं जी वहां ट्रांसफर्स के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ये बात गलत नहीं है, 100% ये बात सही है। मुझे खुद एक एमएलए ने, मेरे एक दोस्त ने एक एमएलए के साथ बात की, एमएलए को उसने बोला कि मेरा ऐसा काम है, उसने कहा जनाब वहां पे बैठे मिनिस्टर्स एक रकम के बगैर बात ही नहीं करते हैं। वहां पे बैठे मिनिस्टर्स, हम अंदर जाते हैं, हमें तो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती है। अल्लाह गवाह खा के कहता हूं, मैं आपको एक वाकया बताता हूं, बिल्कुल मुख्तसर में, थोड़ा लंबा जा रहा हूं क्योंकि अंदर से सीना फटने को आया है पिछले 1.5 साल से जो चीजें मैं देख रहा हूं। मुझे एक एमएलए फोन करता है, मैं अपने घर पे अंदर बैठा हुआ हूं, वो मुझे फोन करके बोलता है कि जनाब अली आप ठीक है? मैं बोलता हूं जनाब मैं ठीक हूं। ये पहले दिनों की बात है, 2-3-4 महीने पहले जब इलेक्शन हुए थे। वो मुझे कहता है मुझे उमर साहब का नंबर चाहिए। मैं कहता हूँ जनाब आप एमएलए हैं, आपको उमर साहब का नंबर? कहता है नहीं जनाब मुझे उमर साहब का नंबर, मैंने अपने साथियों के साथ डिस्कस किया, मेरे जो दोस्त हैं। कहता है नहीं जनाब मुझे नंबर नहीं है। मैं नंबर फॉरवर्ड करता हूँ, उमर अब्दुल्ला तब गुजरात गया हुआ था। ये मुझे एमएलए वापस फोन करके बोलता है जनाब मैं इसको मैसेज करूं या मैं इसको डायरेक्ट कॉल करूं? मैंने कहा एमएलए साहब आप लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हो, आप मुझे पूछ रहे हो मैं मैसेज करूं, इतना क्या आप डर रहे हो? कहता है नहीं कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा डायरेक्ट कॉल करना। 10 मिनट हो गए, मैंने सोचा क्या पता मैं देख लूं मैसेज किया है या कॉल किया है। 10 मिनट के बाद इस एमएलए को मैं फोन करता हूं, मैं इसको बोलता हूं जनाब क्या बोला आपने अपने मसले के रिलेटेड? कहता है जनाब वही वापस परवाइश उनके बकर में तोर एक बासा ये जान विकस। ये माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। एक बादशाह वहां पे बैठा हुआ है, एक बादशाह का एक राज बैठा हुआ है, जहां पे लग रहा है कि नहीं ये जम्मू कश्मीर की जितनी सारी आवाम यहाँ पे, हमारे गुलाम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब कोई काम की बात करता है, जब किसी भी मसले की बात करता है, तब यहाँ पे उमर अब्दुल्ला कहता है नहीं जनाब मेरा कोई सुनता नहीं है, मैं जनाब यूटी में हूँ, मेरा कोई काम करता नहीं है, मुझे आगे कोई सुनते नहीं है। मुझे आप बताइए अपने दोस्त के लिए आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो लाना आता है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की आवाम जिसको आप डेडलाइन दे देते हैं यहाँ पे कि नहीं जी 31 मार्च तक आप लोग बिल्स क्लियर यहाँ पे करें। मुझे पता है, खुदा की कसम मैंने देखा है आवाम को रोते हुए मेरे अपने इस आंगन में, किस तरीके से वो बोलते हैं कि मनहज बरोस वार वार बिल, अब धीरे धीरे हम लोग वो बिल अदा करेंगे, एमस मनहज या अख्तर मार्च मकलाओ तो डेट मेहरबानी कर ऐसे गरीबान तान करें। ऐसी हालत हुई है। और यहाँ पे इस टाइम पे जो हालात यहाँ पे गुजरे हैं, जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, आप मुझे यहाँ पे बताइए। मैं आप लोगों की वसादत से यहाँ पे कहना चाहता हूँ ये लड़ाई 370 की थी, ये लड़ाई स्टेटहुड की खाली लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब 2 मिनट के लिए हम मान ले कि स्टेटहुड की रिस्ट्रिक्ट लड़ाई करके स्टेटहुड भी चलो मान ले, लेकिन आज 370-35 की लड़ाई रिस्ट्रिक्ट हो रही है स्टेटहुड पे। फिर ये लड़ाई 3 स्टेटहुड से रिस्ट्रिक्ट हो गई बिजनेस रूल्स पे। फिर ये लड़ाई मुझे फोन करके बोला गया, जब मैंने कहा आप लोग कर क्या रहे हैं, कल को आपको जवाब देना है, कल को आपको कश्मीर की आवाम को जवाब देना है। मुझे यहाँ पे बोला गया ये चीज कि नहीं हम लोगों को कुछ 5-6 कॉर्पोरेशंस और दे रहे हैं, हम आपको भी कहीं एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कहा जनाब कॉर्पोरेशंस की तो लड़ाई नहीं है 370 की लड़ाई पे, अब बिजनेस रूल भी भूल गए आप लोग। अब आप कॉर्पोरेशंस पे आगे कि हमें अपने लोगों को यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये वो मकसद भूल चुके हैं जिस मकसद के लिए आए थे। इनका वो मकसद ही नहीं था। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं, 10 दिन पहले उमर अब्दुल्ला होम मिनिस्टर से मिलने जाता है, पहले ही बयान दे देता है कि मैं वहां जाके बिजनेस रूल डिस्कस करूंगा। मुझे आप एक बात बताइए खुदा के वास्ते, अगर हमें स्टेटहुड ही चाहिए 370 को, आप
साइड में रखिए। अगर आपको स्टेटहुड ही अब चाहिए, मुझे बताइए आपको बिजनेस रूल किस चीज के लिए चाहिए? अगर आप स्टेटहुड की लड़ाई ही आप लड़ रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर ही दिया है, आप तो खुद इनको बता रहे हैं हमें बिजनेस रूल दे दीजिए, वो स्टेटहुड कहां दे दीजिए, वो स्टेटहुड कहां आपको दे देंगे? आप खुद इनको इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आपको दिल्ली में कहा गया है जिस हिसाब से हमें यहां चलना है उस हिसाब से आप करेंगे। मुझे ये बात बोलने में कोई एतराज नहीं है। 370 का फैसला अगर किसी पार्टी ने एंडोर्स यहां पे किया है, वो जनाब अली नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पे एंडोर्स उस चीज का किया हुआ है। मैंने अकेले दम पे बार बार उमर अब्दुल्ला को इस बात का मैंने खुलासा किया। मैंने कहा नहीं, यहां पे हम एक लड़ाई भूल रहे हैं। मैंने कहा उमर साहब मैंने अकेला लड़ा है, आप देखेंगे, आप गवाह होंगे। मुझे अभी तक आप बताइए एक भी स्टेज जहां पे 370 के बारे में जलसा हुआ हो, जहां पे 370 के बारे में नारेबाजी हो। एक जलसा 2022 में जो मैंने किया था, अपने घर पे किया था, जहां 370 पे नारेबाजी हुई थी, जहां हमने 370 की डिमांड वहां पे की थी। मुझे पता है किस तरीके से एजेंसीज ने मुझे बुलाया गया, किस चीज से प्रेशराइज मुझे किया गया, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से हिला नहीं, मैं डटा रहा, मैंने मुकाबला किया। और उस बात का एहसास और उस बात का खुलासा मैंने उस बंद कमरे में उमर अब्दुल्ला के साथ किया। मैंने कहा उमर साहब मैं लड़ा हूं अकेले, मैं इस कौम के लिए लड़ा हूं, मैंने अपनी सेक्रीफाइसेस की है, मैंने इस हर जगह हर बार इस बारे में बात की है कि नहीं बीजेपी ने जो यहाँ पे हालात किए हैं उनके खिलाफ लड़ा हूं, कहीं उस बारे में आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। इस तरीके से अल्लाह गवाह मुझे इस चीज का भरोसा दिलाया गया। मुझे बहुत सारों ने उस टाइम कहा कि आपने गलती की, आपको खुद इलेक्शन लड़ना था, लेकिन अल्लाह गवाह मकसद वहां पे इलेक्शन लड़ने का नहीं था, ना तो मकसद वहां पे एमएलए बनने का था, मकसद यहाँ पे लड़ाई एक ही थी। आज आप देखिए ये लड़ाई कहां पहुंच चुकी है। अब बिजनेस रूल भी भूल गए, अब ये लोग कॉर्पोरेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते गए। आप देखिए मैंने उस टाइम पे भी बोला, जब वक्फ बोर्ड की बिल आई, मैंने उस टाइम पे भी बात की। मैंने सोचा ये हमारी मुस्लिम स्टेट का सो कॉल्ड मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है, ये शायद इस बारे में बिल लाएगा। उस बात का मुझे रिप्लाई ही नहीं आया। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं, मैंने कहा आज सबकी नजर आप पर है, आप लोग देख रहे हैं, आज बात यहां पे वक्फ बोर्ड की है, आप यहां पे बिल लाइए, चाहे जो भी होगा हम आपके साथ पीछे खड़े हुए हैं, आपके साथ आवाम खड़ी हुई है। महराज मलिक को पीएसए लगता है, मैं उमर अब्दुल्ला को मैसेज करता हूं, मैं बोलता हूं आज ये आपका हाल है। मैंने पोस्ट भी ये किया था वहां पे कि आज ये एक एमएलए का हाल है, कल हम पे भी ये बारी आएगी। मैंने ये बात बताई, मैंने कहा इस पे पीएसए लगा, आप रेजोल्यूशन पास कीजिए, आप धरने पे बैठ जाइए, आप बिल्कुल अंदर नहीं जाइए जब तक उसको वापस रिलीज ना किया जाए। बात वहीं चली। मैंने कहा इंजीनियर रशीद जेल में बंद है, आप उसके बारे में बात कीजिए, 6 साल गुजर चुके हैं, इतनी कौन सी सजा है, इतना कौन सा गुनाह है, आप उस बारे में बात कीजिए, आप बाहर आइए। कश्मीर की आवाम आप लोगों को देख रही है, बिल्कुल भी कोई ये चीज नहीं कही। बता रहा हूं जिस टाइम पे मैंने ज्यादा इस बारे में बात की, मैंने कहा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप लोग उस चीज से कर रहे हैं। मुझे बंद कमरे में, मैं आपको डेट भी बता रहा हूं, 8 जुलाई 2025 की बात है। मुझे सेक्रेटेरिएट में उमर अब्दुल्ला कहता है आप रूहुल्लाह की बोली बोल रहे हैं। ये रूहुल्लाह की बोली नहीं थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आगा साहब की बोली नहीं है, ये बोली पूरे कश्मीर की आवाम की बोली है जो आप मुझे बता रहे हो, या आप जी रूहुल्लाह साहब की बोली यहाँ पे बोल रहे हो। मैं वो बोली यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको वो चीजें याद दिला रहा हूँ, आप मुझे बताइए। और रही बात यहाँ पे आप बताएंगे कि नहीं जी इख्तियार की कोई चीज, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स गवाह हैं, मेरे घर आए, मेरा नाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने खुद दिया, जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं था, मेरा नाम वहां पे प्रपोज किया गया, बात चली कि नहीं इसको बनाएंगे। मैं वाहिद बंदा हूं, अगर कोई यहाँ पे आपको डिनाई करता है मुझे आप आके बताइए, मैं उनके नाम भी बताऊंगा, मेरे घर कौन कौन आता है। उसमें बड़ी शख्सियत गांधरबल की है, मेरे घर आए, मुझे कहा आपको जी हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, मेरा नाम खुद वहां पे दिया। उसमें बहुत सारे लोग गवाह हैं, कुछ 4-5 लोग यहाँ पे भी है, बंद कमरे में मेरे साथ बातें करते थे। और लेकिन मैंने उस चीज को भी ठुकराया, मैंने कहा मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने नहीं आया हूं, मेरी लड़ाई कोई और है, मेरी लड़ाई एक अलग लड़ाई है। मैं यहाँ इख्तियार के लिए आया होता तो मैंने उमर अब्दुल्ला को उसी टाइम मांगा होता, मुझे फलानी कुर्सी पे बैठना है, मुझे यहाँ पे बैठना है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनके क्या करूंगा, मैं उस चीज के लिए यहाँ नहीं आया हूं। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पे ये चीज है, हर जगह में हर मौके पे हर टाइम पे यहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर ने कॉम्प्रोमाइज किया है, और कॉम्प्रोमाइज के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। आज यहाँ पे जब बात आती है, आप देखिए इससे पहले एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे बोला था शराब की बिल लाइए, उमर अब्दुल्ला कहता है मेरे मैनिफेस्टो में नहीं है। आप मुझे बताइए क्या ये चीज मैनिफेस्टो में रखने लायक है? आप यहाँ पे मुस्लिम स्टेट के एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है, आप मुझे बताइए आपने परसों कहा जिसके धर्म में शराब पीना है वो पिए। मैं आपको चैलेंज मार के बताता हूँ, मुझे एक धर्म आप बताइए जो शराब को अलाउ करता है। किसी भी धर्म में शराब पीना अलाउड नहीं है, ना तो क्रिश्चियनिटी में है, ना तो हिंदुइज्म में है, ना तो जुडाइज्म में। आप किसी भी मजहब की किताब उठा के देख लीजिए, मैं कोई मुकर्रर खतीब या आलिम नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं अपने दीन के बारे में, इतना जानता हूं अपने अहले किताब के बारे में, इतना चीजें पढ़ी हुई हैं कि कोई भी मजहब शराब को एंडोर्स नहीं करता है। अब आप मुझे बताइए, इस टाइम पे बात आ गई जब यहाँ पे आज शराब का जो जिक्र चल रहा है, उस टाइम क्या था मेरे मैनिफेस्टो में नहीं है। लेकिन आज जब वाकई में आप देखिए कश्मीर के हालात कैसे हैं, किस हिसाब से हमारे नौजवान मुब्तला हो रहे हैं इस चीज में। मैं मानता हूं माहौल ऐसा है, माहौल का असर पड़ता है। आप मुझे बताइए एक 5 टाइम का नमाजी भी अगर आप एक बदकिरदार
کردار انسان کے ساتھ 10 دن میں بیچ دیں, مجھے لگتا ہے وہ بھی اپنی نماز بھول جائے گا. ماحول کا اثر پڑتا ہے, شیطان یہاں پہ ہے, وقت دجال ہے. ہم ہمیشہ یہاں پہ دعا کرتے رہتے ہیں, ہر نماز میں, ہر عطیات میں دعا کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. وقت دجال ہے, ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. مگر میں کیٹیگوریکلی آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں, اگر یہاں پہ دجال کی کوئی فوج ہے, وہ ہمارے یہاں پہ یہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ یہ دجالی کلچر یہاں پہ چلانا چاہتے ہیں, جو اس حساب سے یہاں پہ چلتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. اس ٹائم پہ آخری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اتنے سارے مسائل ہیں, میں ابھی چند ہی مسائل کا آپ کے سامنے خلاصہ کیا. اتنے سارے معاملات ہیں, اتنی ساری چیزیں یہاں پہ گزر چکی ہیں, لیکن اصلی معاملہ جو اس ٹائم پہ آیا ہے, جہاں پہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے, آپ یہاں پہ شراب کو انڈورس کر رہے ہیں. میں اللہ گواہ آپ کے خاکے کہتا ہوں, میں 2 دن سے نہیں سویا ہوں. اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے, پہلے تو آپ یہ بات رکھیے, مطلب ہم سب لوگ جس حساب سے میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں, 2 دن پہلے میں سرپرائز ہو گیا جبکہ فاروق عبداللہ کا ایک بیان آتا ہے, وہ کہتے ہیں 1977 میں جب شیخ صاحب الیکشن دیسائی یہاں پہ پرائم منسٹر تھے, مراد جی دیسائی یہاں آئے, شراب کے سخت خلاف تھے. یہ فاروق صاحب کے الفاظ ہیں, مراد جی دیسائی شراب کے سخت خلاف تھے, لیکن شیخ صاحب نے ان کو وہاں پہ کہا جناب میں شراب بند نہیں کر سکتا, اس کا جو ریونیو آ رہا ہے وہ ریونیو مجھے وہاں پہ کون دے دے گا. آپ تو اپنے باپ کو بھی اب بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میں عمر عبداللہ کو یہاں پہ بتاتا ہوں, جو یہاں پہ یہ کہتا ہے, آپ لوگوں سے انہوں نے کہا یہاں پہ بیٹھ کے کہ نہیں جی آپ شرابوں کی دکانوں پہ یہاں جاتے ہیں, آپ مطلب کیا ہے, آپ مطلب آپ ہو, کشمیری ہو, میں ہوں, یہ ہے, سارے کشمیر کے لوگ ہیں. کیا آپ کشمیریوں کو یہ لیبل لگانا چاہتے ہیں کہ کشمیری شرابی ہیں؟ کیا آپ کشمیری کو یہ لگانا چاہتے ہیں کہ کشمیری بدکردار ہے؟ لیکن کیا آپ ایک بار بھی آپ لوگوں نے اس چیز کی شرم نہیں کی یہاں پہ یہ بیان دیتے ہوئے کہ نہیں جی ہم دکانیں کھلی رکھیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے, پھر ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ ڈرگس بھی دکانوں پہ بیچنا شروع کریں گے, پھر میں بیان دے دوں گا کل کو نہیں جناب میں نے اپنے دکان کھولی ہے, ڈرگس ہے یہاں پہ, یہ بندہ ڈرگس لینے کے لیے آیا ہے, میں تھوڑی زبردستی اس کو ڈرگس لینے کے لیے یہاں بلا رہا ہوں, اس کی اپنی مرضی ہے, اس کی اپنی چوائس ہے. کیا یہ جواب ہوتا ہے کشمیر کی عوام کا؟ آج جس حساب سے گرج رہے ہیں, آپ کو ادھر سے بگل بجتا ہے, آپ ہاتھ ایسے جوڑ کے نمسکار وہاں پہ کر دیتے ہیں. وہ سر جو آپ کا اونچا رہتا تھا الیکشن سے پہلے, آج وہ سر آپ نے بی جے پی کے قدموں پہ یہاں پہ